Hello everyone and welcome to Sumit Kumar Suryavanshi channel. We are discussing political science of +1 in this class, and we already discussed few questions that why we need a constitution. We already discussed that we need a constitution to maintain peace, create balance, development, to reduce the conflict. Okay, whenever you are dealing, supposed to make the question like that why we need a constitution. We need a constitution to for development, to maintain peace and to reduce the conflicts, to give the powers, to limit the powers, to give the right to the peoples. For these things we need a constitution. We already also deal that this was all like constitution allow coordination and insurance. These were the things which was explaining that question, that why we need a constitution. Okay, we also discussed that what is constitution. That constitution is also aspiration of the goal. So to create a discrimination in the society, also a reason we can say we need a constitution. To maintain the law and order, we can say we need a constitution. Fundamental identity of the people, so to give rights to the people, we need a constitution. Okay, so these are the reason why we need a constitution. After that we also discuss that what is constitution. Constitution is a set of rule which provides certain kind of the law and order. And we also discuss that Indian constitution is the largest constitution. We also discuss that the authority of the constitution, that there should be some authority to control, to balance the constitution. And mode of promulgation we discussed. We also discussed that substantive have provision of the constitution, ki why we need a constitution. Major question I will discuss after the chapter, that why we need I will make a video related to slide why we need a constitution, what is the importance of constitution. Okay, so today we are going to discuss balanced institutional design, that whenever you are trying to design a constitution, what kind of thing you supposed to follow. Like the first is best crafted constitution. बेस्ट क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को हम कह सकते हैं कि दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ट क्राफ्टेड व्हेन दैट कॉन्स्टिट्यूशन डजंट हैव एनी काइंड ऑफ वीकनेस. कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जब बेस्ट क्राफ्टेड बोला जा सकता है जब उसके अंदर कोई कमी ना हो, किसी भी सिंगल कोई भी ग्रुप हो उसके साथ किसी प्रकार की मतलब अनजस्टिस ना हो रहा हो, सभी को जस्टिस मिल रहा हो, सभी में पीस मेंटेन करके सबको इक्वालिटी दी जा रही हो. मतलब जो भी रूल्स हैं लाइफ, मतलब रूल्स एंड ऑर्डर को मेंटेन भी करता हो, लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट भी करता हो, लोगों को राइट देता हो, गवर्नमेंट को लिमिटेड भी करता हो, गवर्नमेंट को पब्लिक के लिए कंसर्न बनाता हो. ठीक है, और ऐसे रूल्स और रेगुलेशन हो जो पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो उसको हम बेस्ट क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. लेकिन ये बेस्ट क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या? क्राफ्ट का मतलब है बनाना. सो कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से बनाया जाए बेस्ट क्राफ्टेड, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर डिस्कस करने के लिए. नॉट अ मोनोपोली ऑफ द सिंगल पावर, कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सिंगल मोनोपोली ना हो. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वैसे मोनार्की में भी होता है, किंग के पास भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करता है. लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, किंग को सारी की सारी पावर दे देता है, जिसकी वजह से किंग उन लोगों के ऊपर रूल करता है और उनको कंट्रोल करता है और रिप्रेस करता है. तो मोनोपोली नहीं होनी चाहिए. एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक को पावर को मोनोपोली नहीं दी गई है, बल्कि पावर को 3 बेसिक स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है. जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों के बीच में पावर को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रखा है, जो कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि पावर को इनके बीच में हॉरिजॉन्टली डिवाइड करके इन दूसरों को एक दूसरे से इंटरलिंक किया गया है, ताकि इनमें से कोई भी मोनोपोली ना क्रिएट कर सके और एक वेल एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी को हम रन कर सकें. इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक द इलेक्शन, और कुछ ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो इन सब के ऊपर कंट्रोल भी रख सके, जैसे कि इलेक्शन कमीशन. क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है आपने 10th क्लास में, इलेक्शन कमीशन या 9th क्लास में पढ़ा होगा. इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी कंट्री का इलेक्शन कमीशन फ्री है तो वो कंटिन्यू इलेक्शन को करवा सकता है. अगर इलेक्शन कमीशन मान लीजिए गवर्नमेंट के अंडर ही कर दिया जाता, तो अगर कोई गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट को लीव नहीं करना चाहती तो वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करने के लिए परमिशन ही नहीं देगी. क्योंकि 5 ईयर के बाद डेमोक्रेसी का ये रूल है ना कि 5 ईयर के बाद जो गवर्नमेंट है वो चेंज होनी चाहिए, या जितने भी ईयर का टाइम फिक्स किया होगा. इंडिया में जैसे 5 ईयर है, तो अगर इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के अंडर हो तो मान लीजिए वो गवर्नमेंट उसको परमिशन ही नहीं देगी चेंज करने की. तो इसलिए फ्री होना चाहिए इलेक्शन कमीशन. थर्ड क्या है, सिस्टम ऑफ द चेक एंड बैलेंस, कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो चेक एंड बैलेंस बना के रखे, यानी कि कोई भी अपनी पावर का अगर रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है तो उसको चेक कर सके और बैलेंस बना के रख सके. बैलेंस कैसे, जैसे रिजिड और फ्लेक्सिबल,
कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी होना चाहिए और फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। रिजिड का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो मोरल वैल्यूज़ हैं, जो प्रिजर्व्ड वैल्यू हैं, उनको इजीली चेंज ना किया जा सके। और फ्लेक्सिबल का मतलब है कि इतना ज़्यादा कठोर भी ना हो कि कोई अगर सिंपल कानून बनाना हो तो आप उसको भी पास ना कर सकें, ठीक है। प्रेजेंट देखिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है कि प्रेजेंट कोर वैल्यू अडोप्ट न्यू वैल्यू एंड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांस, की जो प्रिजर्व कर सके कोर वैल्यू, जो कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज़ हैं उनको चेंज ना किया। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो मेन थीम्स है हमारी, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको चेंज नहीं किया जा सकता। सिर्फ कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिकली हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कोर वैल्यू को हमें प्रिजर्व करना होता है, न्यू वैल्यूज़ को अडॉप्ट करने, तो कुछ जो लॉज होते हैं वो हम बना सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी और मीडियोकर भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट मतलब होता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन में आप कैसे चेंज करते हो। तो चेंज करने के लिए तीन तरीके, एक तो आप सिंपल लॉ जैसे पार्लियामेंट में पास होता है, मेजोरिटी मिलते ही पास हो जाता है। एक होता है कि पार्लियामेंट में 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए, वो भी प्रेजेंट की, यानी कि अगर 100 लोग प्रेजेंट हैं तो उसमें से करीबन ये लगा लीजिए आप 2/3 आपका हो गया 33 निकाल दीजिए, तो करीबन मतलब 75 या 70 के करीब लोग आपके पास पक्ष में होनी चाहिए, तभी वो पास होगा। एक है कि 2/3 मेजोरिटी आपको पार्लियामेंट में लेनी होगी, उसके बाद पूरा जो सभी स्टेट हैं उनसे आपको परमिशन लेनी होगी, हाफ स्टेट परमिशन दे। तो इस तरह से 3 स्टेज हैं हमारे पास, एक बिल्कुल सिंपल भी है, एक थोड़ी डिफिकल्ट है और एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरह का होना चाहिए कि वो अपनी मॉरल, उसकी वैल्यू को कोई चेंज ना कर सके, जिसके अकॉर्डिंग वो बना है पब्लिक वेलफेयर के लिए, बट अगर कोई न्यू अडोप्ट है तो उसको भी इजीली उसमें डाला जा सके। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इसीलिए ये बोला जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्योंकि लिविंग बीइंग क्या होती है, कोई भी लिविंग बीइंग क्या होती है, वो जो चेंजेबल, जैसे लाइफ का कैसे पता लगता है कि ग्रोथ करता है, चेंज होता है, बढ़ता है, तो इससे हम बोलते हैं कि वो लाइफ है। उसी तरह से कोई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या, हर टाइम उसमें अमेंडमेंट होते हैं, तो आर्टिकल्स वगैरह बढ़ते रहते हैं उसके अंदर, तो वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे चेंज होते रहते हैं, वो ग्रो करता है, बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या, हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड, कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना कैसे था। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जरिए बनाया गया है। अगर आप लोगों को पता हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन था। 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, उसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम करने के लिए कहा था और कहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कीजिए, उसके बाद हम आपको पावर दे देंगे इंडिया को रूल करने की। तो फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके चेयरपर्सन थे जो कि अस्थाई मेंबर थे, यानी कि परमानेंट मेंबर नहीं थे, नॉन परमानेंट मेंबर थे, सचिनानंद सिन्हा। सेकंड सीटिंग हुई थी 11 दिसंबर को, जिसके परमानेंट मेंबर थे और चेयरपर्सन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपने शायद ये पढ़ भी रखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो अम्बेडकर थे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो चेयरपर्सन थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा टोटल जो मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे वो 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 292 फ्रॉम प्रोविडेंशियल ब्रिटिश गवर्नमेंट। प्रोविडेंशियल ब्रिटिश गवर्नमेंट से मतलब है कि 1935 में जो एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग इलेक्शंस हुए थे। उस इलेक्शन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो पार्लियामेंट बनाई थी, उस पार्लियामेंट में से 292 प्रोविडेंशियल जो भी पार्लियामेंट नहीं, प्रोविडेंशियल जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी हुई थी उनमें से 292 मेंबर्स आए थे। उसके बाद 4 आपके चीफ कमिश्नर आए थे। 93 प्रिंसली स्टेट यानी जो राजा महाराजा अभी भी थे, उन्होंने अपने कुछ 93 मेंबर्स को उसमें भेजा था ताकि सभी लोग मिलके सभी के पक्ष को डिस्कस कर सकें। तो सीट का जो प्रोपोर्शनल है वो 1:10 लाख था कि ये प्रिंसली स्टेट के लिए अगर देखें तो एक सीट जो है 10 लाख पॉपुलेशन के लिए थी, इसलिए प्रिंसली स्टेट्स की जो सीट्स हैं वो बहुत कम थी। और कोशिश की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सभी कम्युनिटीज़ को रखा जाए। तो 3 मेन कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख और जनरल का एल मिट क्या है, सॉरी, तो जनरल जो है यहाँ पर एल आएगा बेसिकली यहाँ पे, जनरल भी इसके अंदर थी। या नेक्स्ट हमारा कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कंपोजिशंस कैसी थी कि देखिए हमने बात की थी कि हमने लास्ट स्लाइड में ही बात की थी कि यहाँ पर हमारे मेंबर थे 389 मेंबर में से बाद में 299 मेंबर्स रह गए थे। रीजन क्या था कि मुस्लिम लीग जो है उन्होंने छोड़ दिया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट नहीं कर रही थी, उनको सेपरेट नेशन चाहिए था, इसलिए 298 मेंबर रह गए थे। लेकिन जिस दिन 24 जनवरी 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए साइन किया गया फाइनली पास करने के लिए, उस दिन मेंबर वहाँ पर प्रेजेंट थे
टू 84, कुछ मेंबर्स की डेथ भी हो गई थी जो हमारे इसमें नहीं है, तो इसलिए हम नहीं डिस्कस कर रहे। 284 मेंबर्स ने साइन किया और कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था 26 नवंबर सॉरी, ठीक है, 26 नवंबर को, और 1949 में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेडी हो गया था। उसको लेकिन साइन करके पास कब किया गया? 24 जनवरी 1946 को। और वो फोर्स में यानी इम्प्लीमेशन में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। ये 3 अलग अलग डेट है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में टाइम लगा 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, जो भी आपको पता होना चाहिए कि इतना टाइम में आपका कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था। एंड वॉयलेंस ऑफ पार्टीशन, जिस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस वक्त हमारे पूरे इंडिया में फ्रीडम के बाद वॉयलेंस चल रही थी, पार्टीशंस की वजह से बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो रहे थे, इतने ज़्यादा लोग मर रहे थे। तो उस वॉयलेंस के प्रेशर के अंदर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क रेडी किया, जो न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप डाला, जिसमें किसी को भी किसी प्रकार के रीजन की वजह से डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े, चाहे वो रीजनल हो या माइनॉरिटी हो या कास्टिज्म हो, किसी को भी ऐसी सिटीजनशिप बनाई जिसमें सबको इक्वालिटी मिल सके। नॉट इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल सफरेज, फिर भी ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड नहीं थी, रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर ऑल रिलीजन के, शेड्यूल कास्ट के एंड ये कैन शेड्यूल कास्ट, सॉरी ये कैन एक्स्ट्रा लग गया है यहाँ पर ये कैन नहीं होना चाहिए, सिर्फ शेड्यूल कास्ट आएगा कि शेड्यूल कास्ट के, ऑल रिलीजन के, ऑल पार्ट ऑफ द मेंबर्स, प्रिंसली स्टेट्स, हर रीजन से लोग इसके अंदर आए हुए थे, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, डायरेक्टली नहीं थे। तो फिर इसमें इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा इलेक्टेड ही थी। तो ये था हमारा बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या बेसिकली पार्ट रहा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क करती रहती है। हैव अ लुक ऑन दैट। नेक्स्ट फ्यू चैप्टर में हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। टिल नाउ आई हैव असाइनमेंट फॉर यू, गो एंड सर्च अबाउट how many articles was there that time, how many parts was there, and how many scheduled caste was there when constitution was framed, and right now how many articles, parts and schedule you have in the constitution. Make the assignment and send me.